नादरीन आदाब। एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को आज राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। उनके हक में 125 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 105 अरकान ने वोट दिया। हरिवंश के खिलाफ अपोजिशन ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। अपोजिशन के कुछ रुकन वोटिंग के दौरान ऐवान में मौजूद नहीं थे। हरिवंश झारखंड व बिहार के मारूफ अखबार प्रभात खबर के साबिक एडिटर हैं। उनकी जीत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद समेत सभी अरकान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद पेश की है। सदन की तरफ से और मेरी तरफ से नवनिर्वाचित उपसभापति श्रीमान हरिवंश जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे लिए खुशी की आलमी शोहरत याफ्ता रेत फनकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा में अपनी फनकारी का जौहर दिखाते हुए रेत का मुजस्समा बनाकर साबिक डीएमके रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया है। आपको बता दें कि तवील अदालत के बाद बरोज मंगल कावेरी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया था। राफेल डील में मुबैना घोटाले के मामले को लेकर साबिक मरकजी वजीर अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी और मरकजी सरकार पर संगीन इल्जामात लगाया है। अरुण शौरी ने कहा है कि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे में बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने एक ताज्जुब खेज बात कही कि इस मुद्दे को मंजरेआम पर न लाने के लिए अनिल अंबानी ने उन्हें खत भी लिखा है। अरुण शौरी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान राफेल की जो डील हुई वो बिल्कुल नई थी और किसी नए डील के लिए नए सिरे से टेंडर होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ। Because actually the group's record is that they have great difficulty in executing big projects. Whether you take the Delhi metro line going to the airport or the line railway line in Bombay, series of such projects, power projects, or even in the defense field, they bought that Fort Pipavav. Now there they had to produce 5 these offshore petrol vehicles, and they are not able to do that. So could a foreign enterprise of this sort of experience have just alighted upon a company of this record? It was only a way to benefit somebody at the cost of the public exchequer, at the cost of defense preparedness, and in violation of the guidelines, and to knock out the one company which has had experience in all this. So that's the second point. The third point, and I'll just end with that. That is this whole question of the price. वो कहते थे हम रिवील नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक secrecy agreement है. But actually speaking, the secrecy clause in the agreement relates only to the technical specifications and operational capabilities of the plane. It does not deal with price. And in an interview to India Today, President Macron himself said, he himself said that as far as the price and all is concerned, this is entirely for the government of India to determine how much they want to disclose. So secrecy is that. Second, yes. So not only that, they have forgotten, the fools have forgotten that their own Minister of State for Defence answered a parliamentary question on this very matter in the Lok Sabha and gave the price. And the price he said was price he said was 670 crores per plane.
I'll tell you why they are not reminding you of that price now. 670 crores per plane, and that will include everything. And he listed all those things in that answer to Parliament. Now, this will include requisite equipment, services, and weapons, which presumably includes the missiles. Second, Mr. Parikar himself had disclosed it. Parikar had said, 126 planes would have cost 90,000 crores, so that came to 715 crores per plane. Trippier had said, yes, we continue, the CEO of Dassault, he had said, we completely go by the RFP and what we had submitted at that time. सरसा शहर थाना पुलिस और खातून पुलिस ने बेगू रोड पर बनी सुख सागर कॉलोनी में बने एक मकान में छापेमारी करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तमाम मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पकड़ी गई 3 लड़कियां सरसा से बाहर की रहने वाली हैं। दरअसल खातून पुलिस को इत्तला मिली थी कि सुख सागर कॉलोनी में बने एक मकान में सेक्स रैकेट का खेल चल रहा है। सरसा पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की तो वहां सही में जिनसी कारोबार चल रहा था। शहर थाना इंतजामिया विनोद काजला ने बताया कि मकान से पुलिस ने 3 लड़कियां और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ इमोरल एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वादा हो कि पकड़ी गई 3 लड़कियां बठिंडा, दिल्ली और फतेहाबाद की रहने वाली हैं। सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम कांड पर यूपी सरकार को आज सख्त फटकार लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली है। कोर्ट ने यूपी सरकार से तकरीबन 1 दर्जन सख्त और चुभते हुए सवालात पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि बच्चियां जिन लाल और सफ़ेद लग्जरी गाड़ियों में ले जाई जाती थीं वे किसकी थीं? इस सेक्स रैकेट के पीछे कहीं नेता और वीवीआईपी तो नहीं? हाईकोर्ट ने सरकार को इन सवालों के जवाब देने के लिए 13 तारीख तक की मोहलत दिया है। कोर्ट में अर्जेंट हम लोग की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जो आज ही दाखिल हुई और अर्जेंट बेसिस पे आज ही उसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई को माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुना और माननीय मुख्य न्यायाधीश जो है वो बहुत ही सख्त थे और उन्होंने निम्न जो आदेश थे वो पारित किए। पहला उन्होंने ये पूछा है कि जो बच्चियां थी वहां पे वो कुल 42 थी, उसमें से 24 रेस्क्यू हुई है, तो वो जो 18 बच्चियां गायब हैं वो आखिर हैं कहाँ, उनका क्या पता है और वो कहाँ पे है, उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा और साथ ही जो 24 बच्चियां उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाएगा, वो कहाँ पे रखी गई हैं, इसकी रिपोर्ट दर्ज हो। दूसरा ये कहा गया है कि जो पुलिस ये जो संस्था थी ये 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, तो ये अभी तक कैसे काम कर रही थी, ये इसकी रनिंग कैसे हो रही थी? इसकी रनिंग बिना किसी पॉलिटिशियन के या बिना किसी वीवीआईपी के संरक्षण के या बिना किसी पुलिस के संरक्षण के नहीं हो सकती। तो इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और वो जो गाड़ियां आती थी निरंतर अलग अलग रंगों की, वो गाड़ियां किसकी हैं, इसकी रिपोर्ट तलब की गई है। इसमें तीसरा फैसला जो आया है वो ये आया है कि सीबीआई की, जैसे सब जानते हैं कि सीबीआई की जांच इसमें पारित करने का आदेश आ चुका है, तो सीबीआई अपनी जांच कब से शुरू करे। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में शौहर का नाम आने के बाद बिहार की समाजी फलाह बहबूद की वजीर मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मामला के अहम मुलजिम ब्रजेश ठाकुर की कॉल डिटेल में कई मरतबा इसके और मंजू वर्मा के शौहर के दरमियान बातचीत का इंकशाफ हुआ था। उसके बाद बुध को अदालत में पेशी के दौरान भी मुलजिम ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के शौहर से अपने ताल्लुकात का इतराफ़ किया था। बिहार के इस हाई प्रोफाइल केस में अपोजिशन पार्टियां मुसलसल मंजू वर्मा के इस्तीफा का मुतालबा कर रही थी। वजीर आला नीतीश कुमार ने भी मामला में मंजू वर्मा का नाम आने के बाद कहा था कि अगर वो कसूरवार पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमेशा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग या आप मीडिया के लोग पता नहीं कहां से ये लाए कि सीडीआर से चंद्रशेखर वर्मा की बात होती है, इसीलिए वो दोषी है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ और मंत्री हूँ, और हमारे पति एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और सामाजिक जीवन में होने के नाते हर किसी का फोन रिसीव करने का मेरा दायित्व बनता है, और हर कोई चाहे वह कैसा भी लोग हो, हम लोगों से फोन करते हैं, उनका समस्या सुनना हमारी जवाबदेही होती है, और बात अगर कभी नहीं हो पाई तो रिकॉल करना भी हमारी जवाबदेही होती है।
और इसके आधार पर आप लोग कल शाम से हाथ तोबा कर रहे थे कि CDR में चंद्रशेखर वर्मा को उससे बात किया। चंद्रशेखर वर्मा ब्रजेश ठाकुर से बात करते थे, ऐसा आया। उधर खबर आ रही है कि कल कोर्ट में पेशी के दौरान एक एहतजाजी खातून ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के कलीदी मुलजिम पर काली स्याही फेंककर अपने गुस्से का इजहार किया। तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा के एक बयान के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत फिर गर्मा गई है। एक प्रोग्राम में दलाई लामा ने मुल्क के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की जिद को हिंद पाक की तकसीम की वजह बताया है। गोवा के दारुल हुकूमत पनाजी में कॉलेज के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म का ओहदा जिन्ना को सौंपना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी के फैसले की अनदेखी ही भारत और पाकिस्तान की तकसीम की वजह बन गई। दलाई लामा का यह बयान एक तालिब इल्म के सवाल के जवाब में आया जब उसने पूछा कि हमें अपनी गलतियों से कैसे उभरना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तकसीम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू एक तजर्बाकार इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गलती की। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। अगर जिन्ना को बनाने की महात्मा गांधी की ख्वाहिश मान ली जाती तो फिर मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम नहीं होता। वाज़ेह हो कि दलाई लामा के बयान से बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने इत्तेफाक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि गांधी का नेहरू के बारे में ख्याल ये था कि वो खुद गर्ज इंसान थे। गांधी जी इस बात को जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू मुल्क से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कि जब 15 PCC प्रेसिडेंट्स में 14 PCC प्रेसिडेंट्स ने सरदार पटेल को पसंद किया पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए और आता है देश के प्रधानमंत्री, लेकिन गांधी ने आग्रह किया सरदार पटेल से तुम हट जाओ, बाद में देखा जाएगा। तो गांधी जी के दृष्टिकोण में एक ही बात थी कि अंग्रेज़ों को कैसे देश से जाने के लिए विवश करें, उसमें उन्होंने किया। इसी प्रकार से विभाजन ना हो देश का, इसके लिए उन्होंने कहा जिन्ना को कि तुम ही बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, और बनने के बाद और अंग्रेज़ चले जाने के बाद जिन्ना को कभी भी हटा सकते थे माइनॉरिटी, और जिन्ना भी होशियार था, उसको पता था, तो उसने माना नहीं। तो इसीलिए आज उसको उठाना, ये तो यूनिवर्सिटी लेक्चर में उठाना चाहिए, सार्वजनिक स्तर पर इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर केरला की बात करें तो पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से तकरीबन पूरे केरला में सैलाब का सा माहौल पैदा हो गया है और लोगों को ज़रूरी अशिया की हुसूलियाबी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिकट, वेनाड, पलक्कड़ के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। साथ ही मलमपूजा और इड़की डैम के खुलने से हालात और पुरखतर हो गए हैं और आसपास के इलाके सैलाबज़दा हो गए हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड और भूस्खलन की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही माली नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और लोगों को महफूज मकाम पर ले जा रही है। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।